Okay, guys, comes to this next topic. This is impulse of a force. Okay, and the impulse is generally denoted by the J, and this impulse is also a vector quantity. Okay, now what is the definition of the impulse? If a large force F applied on objects for a small time, like you consider this ball is coming like this. Here is the bat. You consider this type of situation. Here is the bat. If the ball is coming and collide, this ball is collide with this bat and just moves back. Okay, so what happened here? Now this bat is collide with this ball. At that time, during this contact time is small. This contact time is what? Small. For the small contact time, the force is applied on the ball by the bat. Okay, so we call it is a, here the impulse is applied. Here we can say that that's the impulse is applied. So if this large force F is applied on this objects, any objects like a ball, any other also, okay, for a small time delta t, then the product of F and the delta t is called impulse. इसको हम क्या बोलते हैं? Impulse. So J is equal to F delta t. Here the F is a vector quantity, so J is also vector quantity. So what we have to write down? Direction of impulse is equal to डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसको यहां से निकाल दो. चलो, सो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ force. Now you apply the Newton second law here. Now you apply the Newton second law. What is Newton second law? As we know, so Newton, as per the Newton second law, F is equal to delta P upon delta T. So find the delta P from this equation. So delta P is equal to F delta T, exactly similar to this equation number 1. This is equation number 2. So if you consider the smaller time, then the impulse is equivalent to the change in momentum. If you consider the small time, okay, so for small time, so for small time of contact, अगर आप टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट लेते हो तो फिर इसके इस दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए. तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा P. So impulse is a change in momentum for a small time. Why? But whatever that's given in a definition, this exactly similar to the momentum as per the Newton second law. So we just write this relation here. J is equal to delta P for a small time. Okay. So this everything is same. So direction of impulse is equal to direction of force is equal to direction of change in मोमेंटम. दस ऑल आर सेम. आप ये सब कुछ सेम लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू कंसीडर दिस F is constant, then you apply this relation. This relation is applicable when the F is constant, means force is constant. Then and then only you apply this relation. If force is variable, then we are not find the answer of impulse and momentum by this relation. Okay. So this one is applied only for when force F is constant. अगर F वेरी हो रहा है तो F is depends on the time may be. अगर टाइम के साथ F वेरी हो रहा है, मतलब force is a function of time. At that time we are not apply this equation directly. At that time we require integration. Okay. So let's we write some additional note. Write down the additional note. If force F is variable, what is the meaning of variable? Here the force is a function of time. Force is a function of time. Force डिस्टेंस का भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे टाइम है तो फिर टाइम का ही डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो इफ फोर्स इज वेरिएबल, मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट. इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट मींस इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक F is equal to t² plus 2t plus 3 like this. Okay, so at that time this type of relation does not used. So we just taking an integration of this whole this relation. So what is the answer of impulse? So here you write down the impulse J is equal to, मतलब टोटल
is equal to f dt. Okay, from t initial to t final. So this is our answer. Similar way you can write down the change in momentum also. So what is change in momentum for the same case? Change in momentum is equal to, from this relation, okay, so delta p is equal to integration dp is equal to integration f dt from t initial to t final. This is the answer of change in momentum. So by this way you just getting the answer of change in momentum or impulse by the integration. Okay, if you consider this situation, then what is the force? Force is a delta p upon delta t, है ना. अगर आप small time consider तो force is f dp by dt also. Force is a dp by dt. So that is the first knot for us. Knot number 1. And knot number 2 is what? The force is equal to dp by dt also. It's also write like this, Newton second law. न्यूटन सेकेंड है ना. मैंने यही यहाँ पे सेकेंड टाइम लिखा है लेकिन डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में. यहाँ पे p इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इन दिस सिचुएशन p इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मीन्स यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे p वेरिएबल होगा. आप ऐसा लिख दो कि p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम. तो फिर इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं आप, न्यूटन सेकेंड लॉ, if p is a function of time then force is given as a dp by dt. Okay, Newton second law. See, we just write this type of note here and we understand this type of concept when we studied the motion. If integration is given to us, integration is the area of a graph. So impulse is nothing. What is impulse? If the function is given, then you just using the integration, but the graph is given. So in a graph, if you consider the graph, so in a graph what is impulse? So impulse is equal to area of a graph of f versus t. Okay, impulse is equal to area of a f versus t ग्राफ. आप इसको impulse बोल सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आप ड्रॉ करो ग्राफ, f वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ ऐसा है मान लो, तो इसका जो एरिया है उसको आप इंपल्स बोल सकते हो. ठीक है, ये जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? इंपल्स. दिस इज आवर आंसर. एरिया इज इक्वल टू इंपल्स. आप स्मॉल टर्म में लिख दो, एरिया इज इक्वल टू जी. ठीक है, सो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. सिमिलर वे हियर आल्सो यू अप्लाई द सेम कंसेप्ट. area is equal to change in momentum. So momentum is positive, negative, everything. So above the area above the t-axis positive, area below the t-axis negative. अगर आप इस कंडीशन को काउंट करते हो, then you draw the again f versus t graph like this, like this. Okay, so this area is considered as a positive and this area is considered as a negative. Here also is equal to area of f versus t graph. You apply the same concept, that is a change in momentum. Okay, when the graphical question is asking to you, now here if the graph is given to you, then what? See, that's what, if you draw the p versus t graph, then the exactly similar is a y upon x. So y upon x is a slope of a graph. As we know, y upon x is what? Slope of a graph. Like a velocity is equal to dx by dt. Then velocity is equal to slope of x versus t graph. Here the force is equal to dp by dt. This force is a slope of a p versus t diagram. Exactly, we are just using the same relation. So if you draw, that is a relation. If this variable, then you consider the graph here, then p versus t graph आपने draw किया कोई भी. Okay, suppose this p versus graph is like this. So if you want to finding out the force anywhere, if you want to finding out the force anywhere, then you just draw the graph at, sorry, draw the slope of, draw the straight line and find the slope.
So the slope is equal to what? Force. If the P versus T diagram is given to you, okay, so slope is gives to your force. How? Let's see. Suppose you consider this is the situation like this. यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा. So A क्या हुआ? डेल्टा P. A क्या हुआ? डेल्टा T. So tan theta is equal to slope. As we know, what is the slope in a graph? So slope is generally given as a tan theta. Tan theta is equal to opponent upon adjacent. So opponent is delta P. Adjacent is delta T. What is the delta P upon delta T? That is a force. That is what? Force. Okay, so by this way we just gives answer that is equal to force. So when the graph is given to you, use this concept, you getting this answer. Means if F versus T graph is given to you, find the area. Area is equal to change in momentum. I am not telling you it's momentum, it's a change in momentum. P final minus P initial. Okay, here the area is equal to change in momentum. Means delta P final minus P initial is equal to what? Area. Okay, do not create any mistake. Means whenever you just solve out the problem, you are just doing some mistake here. Okay, so when you solve the problem, you just write the area is equal to change in momentum, P final minus P initial. ठीक है, तो पहले पूरी नोट्स बना लो, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. Guys, in previous sessions we discussed about the Newton first law, Newton second law, and now the last one is a Newton third law. Okay, so as per this Newton first law, this force is equal to 0 if the net force on the system is 0, velocity is constant. As per the Newton second law, net force applied on a system of a body, then it's given as a change in moment, rate of change in momentum. Okay, as per the Newton's law, if we are consider the Newton's law, then before we are going to this one, we discuss something about the how the forces are created, how the force are applied on a body. That's are the some questions. Okay, when the one force is created, it's possible. So as per the Newtonian physics, force does not occur singly in the nature. In a nature, force are always occurs in pair. Okay, if you consider the Newtonian physics, if you consider the situation, Newtonian physics, if you consider the Newtonian physics, then in nature single force is not possible. Single force does not occur in nature. Okay, always forces are present in a nature in pair. That is an important thing. Okay, so in nature single force is not occurs. Okay, always forces are present in pair. Present means occurs in pair. Thus forces are present in the any situation in pair only, in pair. Okay, means when the any one object applied some force on another object, then another object is also applied this some force in the first objects. If you consider two objects, let's consider some situation. You have a two objects, that is the objects A and here is the objects B. If for this first objects applied some force on the second objects, whatever the type of force, okay, we have a number of types of force: contact force, non-contact forces, gravitational force, electroshock. Number of forces are present in a nature, but all these forces are always created in a pair. If the force is present in a system, then always they are created in a pair. Means consider, suppose that is the objects number 1, that's the objects number 2. If objects 1 apply some force on objects 2, suppose F, then this objects 2 is also applied the some force on objects A, supposed to be F, and this both this force, this pair force are always equal and opposite. This pair of a force always equal and opposite. This pair is always equal and
opposite. If you consider this type of situation, then force on B due to A, इसको हम कैसे represent करते हैं? FBA. Force on B, the first objects on it, and due to the second object, so it's written like this. So FBA is this one, then this force is called a force on A due to B, FAB. So this, both the forces are always equal in magnitude, opposite in direction. Equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन. सो दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ. It's a very simple one, and you are studied about this one in a lower standards. When the forces are present, means forces are applied on a body, then the two forces are always equal and opposite. We call it's called action and reaction. We call it is a action and reaction. Okay, so what is this Newton third law? That is a Newton third law, but that's a simple that is a law for understanding only. Now statement is what? To every action there is always equal and opposite reaction. To every action, so to every action there is a always equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. So this is called a Newton's third law. As per this condition, if this condition consider this one is action, then this one is reaction. अगर आप इसको reaction बोलते हो, इसे reaction होता है. Action reactions are just the forces. Here action and reactions are what? These are the forces. This was what? Nothing. It is force. That's just we are giving some names to this one. Okay, action and reaction. Otherwise action and reaction nothing. That's just the forces. Now which force is action and which force is reaction? So इन दोनों में से आप किसी एक को action बोलते हो तो दूसरा reaction हो जाएगा. मतलब कि if you call this FAB is action, then FBA is reaction. If FBA is reaction, then FAB is reaction. Does you just gives any one of the out of these two forces, any one of those forces considered as action, then another force is considered as a reaction. For an example, you just throw one ball and ball is collided with the wall. Okay, then wall is applied some force on a ball and ball is applied some force on a wall. Okay, this type of situation. That's so during this contact there is some force is produced. Okay, now you consider this one object like this pen is in the air. So this pen, on this pen the earth applied some force mg downward side, then pen is also applied some force on earth and upward side. Okay, so this is the action and reaction. You consider the two magnets. You consider two magnets. So that is the magnet 1, and here is the magnet 2. You have a two magnets. Okay, if this magnet on magnet 1 some force applied by the magnet 2, suppose consider F12, then this magnet 1 is also applied the same force on a magnet 2, that is F21. Both are equal and opposite. You consider the two charges, two electrons. Consider that is the first electron, here is the second electron. Actually there is no any contact between them. Okay, so that's two electron. Consider the electron number 1, second electron number 2. Then this electron applied some force on this electron in this direction, so that is what? F12. So same force is applied by this one, that is F21. We call it is repulsive force, we call it is attractive force. Okay, whatever the type of force are always present into the nature in the form of pair only. See here भी यहाँ पे pair create हो रही है, यहाँ पे pair create हो रही है, यहाँ पे pair create हो रही है. आप कोई भी force अगर लेते हो तो नेचर में कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है कि वो सिंगल प्रेजेंट हो. As per the Newtonian physics, all the forces are present in the pair. Okay, out in this pair is always equal in magnitude, opposite in direction. See, so what you have to write, this in magnitude both the forces are same, but as per the direction both are opposite to each other. Both are opposite to each other, and out of this all the forces, any one of these forces is action, any another and remaining force is reaction. Okay, so what is action and reaction? That's nothing. This action and reactions are considered the forces. One is action, another one is reaction. Okay, यहाँ पे आप F12 को action लेते हो तो फिर F21 क्या हो जाएगा? Reaction. Let's we understand some notes about this one. Okay, action and reaction, what? That is the forces, nothing. Okay, any one force is action.
action, then another one is reaction. This is a simple one. If any one of this force is action, then another one is reaction. And the second note is quite important. Sometime maybe you are thinking like this: if this one is action, this one is reaction, then after applying the action, after some time the reaction is produced. But that is a quietly wrong understanding. Means it's not a proper understanding of the Newton's third law. Always action and reaction are produced at the same instant. मतलब ऐसा नहीं कि पहले एक्शन क्रिएट होगा उसके बाद थोड़ी देर बाद रिएक्शन क्रिएट होगा. बोथ द सेक्शन एंड रिएक्शन आर क्रिएटेड एट अ सेम इंस्टेंट. उसमें मतलब जब भी एक्शन क्रिएट होगा उसी टाइम पे रिएक्शन क्रिएट होगा. ओके, सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सिस्टम एट द सेम इंस्टेंट. एक्ट ऑन द सिस्टम एट द सेम इंस्टेंट मतलब दोनों एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होने वाले. सो पेयर, दिस पेयर ऑफ फोर्स आर ऑलवेज पेयर ऑफ फोर्स ऑलवेज एक्टिंग एट द सेम इंस्टेंट. मतलब ये दोनों ही फोर्स एक ही साथ जो भी सिस्टम है उस पर अप्लाई होने वाला है. ठीक है, सो दैट इज द सेकंड वन. एंड द थर्ड वन, एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ, this both are equal in magnitude, opposite direction. If you write in magnitude, see, you just consider this situation, this one. Okay, so that is the objects A, here is the objects B. So what is this force on A due to B? So this one is a force on A due to B, this one is a force on B due to A. So if you consider the direction also, so magnitude तो दोनों का सेम ही है, बट आप डायरेक्शन पे काउंट करते हो तो फिर एफ ए बी की डायरेक्शन और एफ बी ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन. ओके, हम काफ़ी टाइम लिखते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए. सिमिलर वे दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, देन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी. आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी. FBA is equal to minus FAB. If you just count the total force, net force here, you count the net force, then what is your answer? See, FAB plus FBA. So FAB की जगह पे रख दो तो minus FBA plus FBA. What is your net answer? So always net force due to internal forces are zero. Always net force on the system due to internal forces are zero. ओके, इंटरनल फोर्स ही लग रहे हैं, ए भी इंटरनल फोर्स है, भी मतलब सिस्टम पे बात कर रहा हूँ. कोई एक ऑब्जेक्ट की बात है, एक ही ऑब्जेक्ट की बात है तो ए फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन सिस्टम है तो जीरो हो जाएगा. ओके, सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज जीरो. ओके, एक ऑब्जेक्ट है तो होगा, देखो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो अलग रहा है, लेकिन दोनों अकाउंट एक साथ करते हो तो फिर नेट जीरो हो जाएगा. So net force on the system, net force on the system must be underlined, this one, system, not objects. Net force on the objects may be applied due to the internal forces, but on the system, net force on the system is always zero. System due to internal force, due to internal force is always zero. ठीक है, अगर आप ए स्टेटमेंट काउंट करते हो तो यहाँ पे देखो ए और बी की सिस्टम काउंट करो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन्स की सिस्टम काउंट करो, इस तरफ लग रहा है इस तरफ लग रहा है, नेट कितना हुआ, जीरो. दो मैग्नेट्स की सिस्टम काउंट करो, इस तरफ लग रहा है मतलब अट्रैक्टिव की काउंट किया तो इस तरफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो. तो सिस्टम है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप एक ही इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, चलो तो फिर उस पर फोर्स लग रहा है. देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लग रहा है, एक ही मैग्नेट है तो फोर्स लग रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है तो फोर्स लग रहा है. सो ऑन द ऑब्जेक्ट्स, on a single objects maybe internal forces are present. We just consider the effect of internal forces on a single objects, but on a system the net force is zero. So due to this one we consider in the Newton's second law, we consider this F is equal to ma, then F is what, net अप्लाइड फोर्स. मतलब जो भी फोर्स लग रहा है
एक्सटर्नली वही फोर्स काउंट करना है। इंटरनली सिस्टम पे 0 है, एक ऑब्जेक्ट्स का है तो आप इंटरनल फोर्स काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे काउंट करना है वो हम एफबीडी में सीखेंगे, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ, तो आप इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक है। तो पूरा टॉपिक से अपनी बुक्स में नोट कर लो। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस अ नेक्स्ट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो एफबीडी से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको कोई भी प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में एफबीडी बनाना होगा, उसके बाद आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ जो भी आपको अप्लाई करना है वो करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम का स्टार्टअप जो है वो एफबीडी से ही होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफबीडी? एफबीडी इज नेम एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। Okay, if you indicate the diagram, if you indicate the body with the forces, if you draw the diagram with the forces, we call it as FBD. Okay, so if you draw the diagram with the all forces, the diagram with the all forces which is acting on a body, all forces, this which force acting on a body, acting on a body. If you draw any one diagram, if you draw the diagram with the forces which is acting on a body, we call it as FBD. Okay, and whenever you just draw the FBD, you are just given the forces to the body. Okay, nothing else. Okay, now how to draw the FBD? Second question, how to draw FBD? कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल है, आपको एक ही स्टेप फॉलो करना है। ड्रॉ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ इट्स डायरेक्शन, मतलब फोर्स उसमें आपको ड्रॉ करना है लेकिन डायरेक्शन के साथ। यू जस्ट ड्रॉ द फोर्सेस विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ अगर आपने किसी भी डायग्राम ड्रॉ किया तो उसको एफपीडी बोलना है, ठीक है। कैसे फोर्स होने चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसके सिवा भी काफ़ी सारे फोर्स है तो आप वो भी डिनोट्स कर सकते, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, टेंशन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। मीन्स यू जस्ट ड्रॉ द फोर्स ऑन द बॉडी विथ इट्स डायरेक्शन, then it is FBD. How to find it, that doesn't matter, but it means we derive this whole this relation and everything later on, but पहले तो आपको FBD बनाना सीखना है। अगर एक बार आपने FBD सीख लिया तो उसके बाद आप कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास दो केस हो सकते हैं, बॉडी है और रेस पे भी हो सकती है, बॉडी मूविंग भी हो सकती है। Here these two cases are possible. When you just draw the FBD, when you draw the all the forces on the body, then we have a two cases. Case number one, if body is at rest, and case number two, body is moving. मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो सकता है या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो केस पॉसिबल है, दोनों ही केस से चलते हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव अ टू केसेस। इफ एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या फिर v इज इक्वल टू किससे होगी, कांस्टेंट। मूव तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो इसका जब भी एफबीडी आप बनाओगे तो इसका एक्सेलरेशन आपको 0 रख देना है। आप जब भी एफबीडी बना तो एक्सेलरेशन रखना ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब आप डायरेक्टली इसमें क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूज करना है। कैसे करना है हम एग्जांपल में सीखेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ ड्रॉ ही करना सीखना है इस सेशन में, एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में जब सॉल्व करोगे तब इसका लॉ का यूज भी करना सीखेंगे, ठीक है। चलो, सेकंड केस क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिस्टम मूव कर रही है विथ सम एक्सेलरेशन, सो नेट फोर्स उसमें कुछ लगता है। तो इसका प्रॉब्लम अगर आपको सोल्व करना है तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। क्या अप्लाई करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ को कैसे अप्लाई करना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ओके, अभी हम इसमें से वेक्टर निकाल देते हैं, मतलब जब आप लॉ अप्लाई करोगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए तो उसमें एफ नेट की जगह पे क्या रखना है और एम ए की जगह पे क्या रखना है। एफ नेट मीन्स नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब आपने जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की दी हुई है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। और एम ए क्या लिखना है, एम ए इज द नेट मास ऑफ द बॉडी, नेट मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इसकी एक स्पेशल नोट्स लिख देते हैं एनएसएल की, न्यूटन सेकेंड लॉ की। ओके, एफ नेट is equal to ma, where what is f,
What is the F here? So if you consider as F net, then force in the direction of acceleration, net force in the direction of acceleration minus net force in opposite direction of acceleration. आपको जब भी ये मतलब जब FVD बनाओगे तो आपको एक्सेलरेशन की कोई डायरेक्शन देनी होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की कोई भी डायरेक्शन एक दे दो, वो आप पे डिपेंड करता है। राइट हैंड साइड भी दे सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन दिया हुआ है उस डायरेक्शन का फोर्स में से अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्सट्रैक्ट करो, वो इस इक्वेशन में F नेट होगा। जब भी आप वो इक्वेशन अप्लाई करने वाले हो एग्जाम्पल में, FVD ड्रॉ करने के बाद, पहले तो FVD ड्रॉ करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो जब भी अप्लाई करोगे तो F नेट की जगह पे आपको क्या लिखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करते हो कभी भी, तो उसमें F नेट की जगह पे क्या लिखना है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब सपोज ऐसा है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में दो फोर्स है, तो इसका यहाँ पे लिख दो, अपोजिट डायरेक्शन एक फोर्स है, उसको माइनस करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो पूरा F नेट की जगह पे आएगा। ओके, इसमें क्या लिखना है आपको, तो M की जगह पे लिखना है टोटल मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम में एक मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका टोटल मास रख देना है, और एक्सेलरेशन जो है वो नेट रखना है। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये स्पेशल नोट्स में लिख दो। जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आप इस मेथड से सॉल्व करने वाले। यहाँ पे अभी हम वेक्टर निकाल दिया, मतलब यहाँ पे हम जो भी फोर्स रखने वाले वो साइन के साथ ही रखेंगे, ठीक है। तो कौन सी साइन यूज करनी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलो, और कुछ नहीं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव रखे, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स किसे रखे, नेगेटिव। तो इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा हुआ कि इसमें डायरेक्शन ऑफ acceleration is considered positive। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव रख के पूरा इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ का है। न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर आपने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा हुआ कि इसका F नेट कितना हो जाएगा, 0। F नेट कितना रखना है, 0। तो आप उसके भी यहाँ पे नोट्स लिख दीजिए, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ की। नाउ द स्पेशल नोट्स अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ काउंट करते हो तो वहां पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, F नेट 0 रखना है। तो यहाँ पे F नेट 0 मतलब क्या रखना है, इसमें जैसे लिखा गया F नेट जगह का ये रखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स में से अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स सब्सट्रैक्ट करने। यहाँ पे क्या करना है, दो फोर्स को कंपेयर करना है। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फोर्स लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जितना फोर्स है उतना ही फोर्स राइट हैंड साइड होगा, तो फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर ये पेन है उस पर 2 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, 2 न्यूटन राइट हैंड साइड लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो सेम वे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रखना है। यहाँ पे आपको F नेट 0 करना मतलब क्या करना है, आपको फोर्स कंपेयर करने। कैसे कंपेयर करने कि लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्सेस। ऐसा है तो अपवर्ड डाउनवर्ड है तो अपवर्ड फोर्सेस is equal to downward forces। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड फोर्स और राइट हैंड साइड फोर्स सेम हो तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली कितना हो जाएगा, 0। अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स 0 सेम हो ऊपर और नीचे तो फिर नेट वर्टिकली फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करना है, नेट वर्टिकल फोर्स 0 करना है, नेट इंक्लाइन फोर्स भी 0 कर सकते हो। मगर अगर किसी टाइम ऐसा कोई प्लेन दिया हुआ है तो नेट इंक्लाइन फोर्स 0। ठीक है, तो आप कुछ भी मतलब जितने भी फोर्स है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, तो ऐसे दोनों फोर्स को कंपेयर कर देना है। अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन डाउनवर्ड इज इक्वल टू इंक्लाइन अपवर्ड। इंक्लाइन पे फोर्स कभी ऐसे भी फोर्स हो सकते हैं, ऐसे तो ऐसे फोर्स है तो इंक्लाइन अपवर्ड इज इक्वल टू इंक्लाइन डाउनवर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इंक्लाइन
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इंक्लाइन डाउनवर्ड फोर्स। करना कुछ नहीं है, जब भी एफ नेट जीरो करना है तो उसमें एफ नेट इज इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड फोर्स जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, उसके बाद अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है, उसके बाद इंक्लाइन अपवर्ड है और इंक्लाइन डाउनवर्ड के इक्वल है। तो अगर इक्वल फोर्स है तो ऐसे हुआ ना कि एफ नेट जीरो, तो फर्स्ट लॉ का यूज ऐसे करना है, सेकेंड लॉ का यूज ऐसे करना है। ठीक है, चलो एफबीडी बनाना सीखते हैं, उसके बाद एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी, सिंपल, यू जस्ट ड्रॉ वन एफबीडी। अगर ऐसे कोई ग्राउंड है, मान लो दिस इज द ग्राउंड, नाउ वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड हैविंग अ मास m, having a mass m. So how you just drawing this FBD of this one? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर वेट तो लगेगा ही, कितना वेट होगा, ग्रेविटी फोर्स mg, इन विच डायरेक्शन, डाउन, ऑलवेज ग्रेविटी फोर्स इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। सो फर्स्ट आप फोर्स डिनोट्स कर दो इसमें डाउनवर्ड साइड फोर्सेस, सो विच वन, सो डाउनवर्ड फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस, which one, mg, so mg is equal to like this, means you just draw the force in such a way, so that's you just write the answer in there, okay? So that's first force. सेकेंड फोर्स इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है कि यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट सरफेस में दिस बॉडी सरफेस एंड द ग्राउंड बोथ आर इन कॉन्टेक्ट, सो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगने वाला है, which force is applied here, contact force, so here the contact force is applied, so this objects applied some force on the ground in downward side and the ground is applied some force on objects in upward side। तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो मतलब यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे कॉन्टेक्ट फोर्स नीचे लगने वाला है, उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, तो उसको एन लिख देते हैं। तो सेम फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन अपवर्ड साइड, सो दिस वन एन। सो आपको अगर इस बॉडी का ही एफबीडी बनाना है तो बॉडी के फोर्स काउंट करो, बाकी के फोर्स निकाल दो। तो ए एन और एन यहाँ पे लग रहा है और एम जी बॉडी पे लगे, ग्राउंड पे भी ऐसे एम जी लगेगा, लेकिन वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस बॉडी का एफबीडी बना रहे हो, हमें किसका एफबीडी बनाना है, सिस्टम का, ग्राउंड का एफबीडी नहीं बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द गिवन सिस्टम, नॉट द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है, वैसे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन फाइनली आपको किसका एफबीडी बनाना होगा, सिस्टम का, ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स को रखो, बाकी सब निकाल दो, इसमें ऑब्जेक्ट्स को रखो, बाकी सब निकाल दो। तो ऑब्जेक्ट्स कैसा है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कितना मास है ऑब्जेक्ट्स का, m। डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, mg, तो डाउनवर्ड फोर्स ड्रॉ करो, कितना लग रहा है, mg ऑब्जेक्ट्स पे है, और ऑब्जेक्ट्स पे अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, n, an तो ग्राउंड पे लग रहा है, हमें ऑब्जेक्ट्स के फोर्स ड्रॉ करना है। द डायग्राम विद द ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी ओनली, डायग्राम ऑफ द ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी ओनली। तो बॉडी पे सेकंड फोर्स कौन सा लग रहा है, देखो n, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, तो उसको आप यहाँ पे ऐसे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n, तो ए जो फिगर हुई, ए फिगर जो है उसको हम बोलते हैं एफबीडी, मतलब ऑब्जेक्ट्स का एफबीडी। ओके, नाउ यू व्हाट यू सी, अगर आप ये फिगर देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, रेस्ट पे है कि मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा, है ना, रेस्ट पे रहेगा। अगर आप इस पेन को, एक राउंड है, पेन ऐसे रख दो, क्या करे, रेस्ट पे रहेगी। तो ए ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ए एक अप्लाई करना होगा। तो ए ऑब्जेक्ट्स कैसा है, रेस्ट पे, रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करना होगा इसमें। तो इसमें आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर अप्लाई किया सपोज, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट 0 हुआ मतलब कि अपोजिट साइड के फोर्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे क्या काउंट करोगे, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसमें क्या काउंट कर रहेगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो न्यूटन एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 करने के लिए अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल करो, तो n इज इक्वल टू mg। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल टू mg। इस तरह से आपको ये फोर्स मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? तो इस तरह से आपको एफबीडी बनाना है। लेट्स वी डिस्कस ऑन अनदर एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू द एफबीडी। यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल मैंने दिए हुए, फर्स्ट प्रॉब्लम से चलते हैं। तो ड्रॉ द एफबीडी फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
तो पहले यहाँ पे फोर्स दिखाते, उसके बाद m1 m2 को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप m1 से चलो, यू जस्ट कंसिडर द m1। तो m1 यहाँ पे है, उसका वेट जो है m1 और m2 साइड में लिख देते हैं, m1 m2। तो इसका वेट कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड साइड। तो यहाँ पे हुआ m1g, फर्स्ट फोर्स कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड साइड, कितना m1g। तो m1g डाउनवर्ड हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे सरफेस कॉन्टेक्ट में है ना, तो m1 applied some force on a m2 and m2 applied the same force on a m1 in opposite direction as per the Newton third law। तो यहाँ पे इस सरफेस पे m1 m2 पर फोर्स लगाएगा, m1 m2 पर फोर्स लगाएगा कितना, मान लो कि n1, कितना फोर्स लगा n1। तो m2 भी n1 पे फोर्स लगाएगा कितना, सेम n1, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस है तो वहां पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, एंड वी जनरली नो कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ नॉर्मल फोर्स हियर, राइट। फ्रिक्शन भी है लेकिन अभी फ्रिक्शन को काउंट नहीं करते, ठीक है। फ्रिक्शन इस चैप्टर के बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे n1 डाउनवर्ड है, यहाँ पे n1 अपवर्ड है। तो m1 का अगर आप FBD बनाए तो अभी कोई फोर्स वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो m1 का FBD बनाओ आप सिर्फ, सो दैट इज व्हाट m1, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, m1g। अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, n1। सो यू जस्ट ड्रॉ द फिगर इन सच अ वे। सो दिस इज द FBD ऑफ m1। नाउ कम्स टू द m2। तो m2 पे एक फोर्स वहां पे आ ही गया है, कौन सा, n1। ये m1g जो है वो m2 पे नहीं लग रहा है। This net force applied by the objects m1 on m2 is n1। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ही है, वो जो उस पे फोर्स है mg किसका फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है। तो इस m2 का ग्रेविटी फोर्स सेपरेट रहेगा, उसका ग्रेविटी फोर्स कौन सा हो जाएगा, m2g होगा। उसका ग्रेविटी फोर्स क्या होने वाला है, m2g होने वाला है, ठीक है। तो ये जो n1 है वो ऑब्जेक्ट्स 1 से 2 पर आया है, m1g ट्रांसफर नहीं होगा, आप याद रखो इसमें। This m1g separate here doesn't mean this m1g separate on the second object here. This net force due to this objects 1, net force applied on the objects 2 due to this objects 1 is only n1 here. Okay, now m2g downward, यहाँ पे भी सरफेस कॉन्टेक्ट में देखो this one, तो यहाँ पे भी कुछ फोर्स लगने वाला है। So consider this situation. Thus objects 2 applied some force on the ground is supposed to be n2, and ground is applied the same force on the objects 2 is up in upward direction, which one is n2। तो आप सब कुछ निकाल के सिर्फ m2 ड्रॉ करो, चलो। तो सब कुछ निकाल दो उसमें से, यू जस्ट ड्रॉ द ओनली फिगर ऑफ m2, बाकी सब निकाल दो, ओनली कंसीडर फिगर ऑफ m2। तो m2 पे फर्स्ट फोर्स लग रहा है कौन सा, m2g। फर्स्ट फोर्स कौन सा यहाँ पे लग रहा है, m2g। सेकेंड फोर्स कौन सा लग रहा है, an2 ग्राउंड पर है, तो m2 पे an2 लगेगा ना अपवर्ड साइड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मैंने ड्रॉ इस साइड में किया फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो n2 वहां पे होगा, ओके। ये फोर्स भी है n1, देखो यहाँ पे। तो थर्ड फोर्स भी यहाँ पे लगेगा, कौन सा, n1। नाउ यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और नॉट। सो एज पर आवर सिचुएशन दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। सो हाउ यू अप्लाई द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ रेस्ट पे इसलिए, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इस पे एफ नेट 0 करो तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, आंसर आ गया mg इज इक्वल टू n1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0 करो तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स को अप्लाई करो। तो यहाँ पे दो डाउनवर्ड फोर्स है, n1 एंड m2g। तो n1 प्लस m2g इज इक्वल टू n2, इज इक्वल टू n2। मतलब ग्राउंड पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, n1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो n2 की वैल्यू हो जाएगी m1g प्लस m2g। देखो यहाँ पे जो इफेक्ट हमने काउंट करनी थी वो आ गई, जो इफेक्ट हमें यहाँ पे चाहिए थी, n2 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g, तो यहाँ पे आगे देखो, ठीक है। यही इफेक्ट को हमें काउंट करना था और अपना आंसर कुछ ऐसा है।
तो जब भी आपको मतलब ऐसे FBD बनाना है तो आप पहले फोर्स ड्रॉ करो, उसके बाद उसको सेपरेट ऐसे ड्रॉ करके जो भी रूल्स अप्लाई होगा फर्स्ट लॉ या फिर सेकेंड लॉ आपको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई किया, कौन से रूल से, ये रूल से, ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट FBD बनाते हैं, द सिंपल वन, दिस वन। यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है ऐसे, तो मतलब ए सिस्टम मूव करेगी नहीं करेगी, द सिस्टम इज मूविंग और नॉट, ऑब्वियसली सिस्टम इज मूविंग। मान लो कि सिस्टम कितने से मूव करती है, ऐसे, सिस्टम इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन है, तो आपको एक्सेलरेशन इस तरह से डिनोट्स करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस AF तो लग ही रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस। सो इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या लगने वाला है, contact force. So M1 is just giving a pushing force to this M2 and M2 giving a pushing force in opposite direction to the M1. तो यहाँ पे इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, M2 की वजह से M1 पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो हो गया, ओके। M1 पे भी डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगने वाला है, M1 जी। और यहाँ इस कॉन्टेक्ट सरफेस में यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कौन सा लगने वाला है, मान लो कि N1 है। यहाँ पे M2 में कौन सा डाउनवर्ड फोर्स होगा, M2 जी। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कौन सा होगा, ड्यू टू ग्राउंड ऑन द सेम टू, दैट इज सपोज टू बी N2। तो सारे फोर्स आ गए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो आप इस सिचुएशन में एक आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वही फोर्स डिनोट्स करना है FBD में, उसके रिगार्डिंग और जो भी फोर्स है परपेंडिकुलर वो डिनोट्स नहीं करने। यहाँ पे कौन से फोर्स आपको अभी तो मैंने सारे फोर्स दिखाए, लेकिन आपको इसमें कौन से फोर्स इंडिकेट करने हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वही फोर्स इंडिकेट्स FBD में करने हैं, बाकी फोर्स इंडिकेट्स नहीं करने, ठीक है। तो इसी डायग्राम को आप इतना ही ड्रॉ करो सिर्फ, ये क्या है M1, नाउ व्हाट इज दिस M2। तो पहले तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स F। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो M1 पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है, M2 पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में। देखो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, A डायरेक्शन में, तो यही फोर्स ड्रॉ करने, बाकी के फोर्स अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्यों, वो कैंसिल ही होने वाले। द सिस्टम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो वर्टिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड, हॉरिजॉन्टली न्यूटन सेकेंड लॉ इज अप्लाइड। सो वर्टिकली यहाँ पे N1 है, M1 जी है, तो वर्टिकली फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू M1 जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू M2 जी। अगर आप काउंट करते हो या फिर नहीं करते हो, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई सिस्टम है तो आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स काउंट करने हैं, बाकी नहीं करने। क्लियर है सबको। चलो इसका FBD बनाना है तो M1 को सेपरेट ड्रॉ करो, तो ये हो गया M1। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, N, सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा N। इसका एक्सेलरेशन कितना है, A, तो इसका एक्सेलरेशन हुआ है। क्लियर है सबको। चलो M2 का FBD बनाओ, M2 का FBD। तो M2 में इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, N, तो यहाँ पे लग रहा है N। F है और M1 पे लग रहा है, F है और M2 पे नहीं लग रहा है, तो वहां पे मत ड्रॉ करना, ठीक है। ये M2 पे तो सिर्फ N ही अप्लाई हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड। उसका एक्सेलरेशन कितना है, A, तो उसका एक्सेलरेशन हुआ है। मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। How you just applied the Newton second law? See, F net is equal to ma, force in the direction of acceleration minus force in opposite direction of acceleration। ठीक है, चलो तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो, न्यूटन सेकेंड लॉ। सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काउंट किया है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, F, N कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। तो इसमें अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हो तो आंसर होगा F इन द डायरेक्शन, N अपोजिट डायरेक्शन। सो F माइनस N is equal to what is the mass of this system, M1 here, mass of this objects M1, so M1 and acceleration A, so acceleration A। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स का F सेकेंड लॉ हुआ, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स के आप इस तरह से
अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड लॉ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एन, देखो यहाँ पे एन सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एन अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो -0 है तो रखना है, नहीं है तो 0 रख देना। इज इक्वल टू एम ए, लेकिन उसका मास m2 है, देखो इसका मास कितना है m2, तो m2 into एक्सेलरेशन है, तो ए हुआ सेकेंड ऑब्जेक्ट्स पे एक्सेलरेशन, सेकेंड ऑब्जेक्ट्स पे न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इस तरह आप फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया है m1 n1 इज इक्वल टू m2 जी, m1 जी हुआ, n2 इज इक्वल टू m2 जी और कैंसिल हुआ, इसलिए यहाँ पे कहीं पे नहीं है। देखो, तो जब भी एक्सेलरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आपको कौन से फोर्स अप्लाई करने हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाले आप ऐसे कंपेयर करके उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एफबीडी अलग बनेगा, एफबीडी अलग बनेगा, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का एफबीडी बनाओ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एफबीडी बनाओ, तो आप ऐसे दोनों ही लॉ अप्लाई कर सकते हो एक ही साथ। ठीक है, तो ए फर्स्ट लॉ का एफबीडी है, इसमें सेकंड लॉ अप्लाई किया। थर्ड फिगर भी दी हुई है, लेकिन ये थर्ड फिगर आप होमवर्क में कर लेना। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा। इस ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में पुल करेगी और इस ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में पुल करेगी, तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स उसको हम बोलते हैं टेंशन टी, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन टी। और इसका एक्सेलरेशन आप इस डायरेक्शन में रख दो ए, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में ए रख दो। ठीक है, तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पे F और T दोनों ही प्रेजेंट है, यहाँ पे T ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम है वो एफबीडी आप ड्रॉ करना और इसी हिसाब से आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो पूरा जो मतलब सारे एग्जाम्पल और थ्योरी आपकी बुक्स में नोट कर लो।